श्री गोकुल नाथ की जय। તમારી તમામ ચેતન ચેષ્ટાઓ એ ચિત્તમાં અભિવ્યક્ત થઈ રહી છે। ચિત્ત, બુદ્ધિ અને મન। મનને મહાપ્રભુએ કલાત્મક કેમ બતાવ્યો? કેમ કે મનનું સ્થિર થઈ જવું એ જ મનુષ્ય માટે ફાઇનલ ફ્રન્ટિયર છે। મનની ચંચળ વૃત્તિઓ એટલે બધી ગતિશીલ છે। મનની ચંચળ વૃત્તિઓ એટલી બધી ગતિશીલ છે કે પારાની ગતિશીલતા તો ક્યાંય ન ગણી શકાય। અર્જુનને એના કેટલા વિશેષણ આપ્યા? ચંચલમ હિ મનઃ કૃષ્ણ, પ્રમાદ બલવદ દૃઢમ। ચંચલ, પ્રમાદ અને બળવત। મન અને ચંચલતા ને જો એક માની લઈએ તો પણ દ્રઢ પ્રમાદ અને બળવાન એટલે તે પ્રથમતઃ क्या लिख्યું? એટલે મન અને ચંચલતાને જો એક માની લઈએ તો પણ દૃઢ પ્રથમ કરનારો નહીં, પ્રથમ પ્રમાદ કરનારો। પ્રથમ લીધું, પ્રમાદ કરનારો नहीं प्रमथन। हाँ प्रमथन, प्रकृष्ट मथन प्रमथन। मन ते प्रमथन करनारो छे। दहीना रेशा रेशामांथी माखण નીકાળનારી પ્રક્રિયામાં જેમ પ્રમથન કરનારી કહેવાય છે એવી જ રીતે મન પણ પ્રમથન કરવાવાળું કહેવાય। અને પાછું બળવાન કહ્યું કેમ કે પાછું કાંઈ જગ્યાએથી એને હટાવવું કે સંઘર્ષ કરવો એ કાંઈ સહેલું નથી। એટલે મન પ્રમથન કરનાર છે, બળવાન છે અને દૃઢ છે। એક વખત એ વાસનાત્મક પ્રવૃત્તિમાં ભરી જાય એટલે ત્યાંથી એની સાયકલને ઉલટી ફેરવવી કે પાછી લાવવી એ લગભગ અશક્ય બની જાય છે। શ્રી વલ્લભલાલ કાંજી મહારાજ બહુ સુંદર આજ્ઞા કરતા અને કહેતા કે મનુષ્યમાં રહેલું વિવેક અને વાસના એ સર્પની જેમ હોય છે। એક વખત એ જાગૃત થઈ જાય પછી એને શાંત કરવું એ બહુ મુશ્કેલ છે। જે વ્યક્તિમાં સ્વતંત્ર વિવેક જાગૃત થઈ ગયો એ માણસ પછી સાચો રસ્તે જશે અને એનો વિવેક વારંવાર એને કહેશે કે તું શું કરી રહ્યો છે, તું આ સાચે રસ્તે આવ। આમ વિવેક અને વાસના એ સર્પની જેમ છે। તો આ બધી વૃત્તિઓ છે। હવે આગળ વિચાર કરીએ કે અધ્યાસ એટલે શું? જે મૂળ વૃત્તિ કે મૌલિક અભિવ્યક્તિ જેને અત્યાર સુધી કહી રહ્યા છીએ અહમ
अहम એ મૌલિક અભિવ્યક્તિ છે, એ મૂળ અભિવ્યક્તિથી કંઈ પણ અંશમાં જો આપણને અનુભૂતિના સ્તરે એની પૃથકતાનો જો બોધ ન થાય અને એ અહમની મૌલિક વૃત્તિમાં જો આપણે એવું માની લઈએ, શબ્દો ઘણા ખરા ઇનકેપેબલ છે આટલી વાત સમજાવવા, અહમમાં એકંદરે સંપૂર્ણતા માણી લેવી એ એક જાતનો અહમનો અભ્યાસ છે. જે અહમની મૂળ અભિવ્યક્તિ છે એ જે રીતે થઈ રહ્યો છે એ એક અભ્યાસ છે, કેમ કે એ અહમની અભિવ્યક્તિ છે, જેમાં મને કે તને હું પણ લાગી રહ્યો છું અને જેના વગર મને કે તને હું, જેમાં મને કે તને હું પણ લાગી રહ્યું છે અને જેના વગર મને કે તને હું પણ લાગતું નથી. એ હું પણ લાગવું, આવી એક ચેતના થવી, આવો એક બોધ લાગવો, તે હું છું, તે જ એક અધ્યાસ છે. તે હું નથી, પણ હું ને પૃથક સત્તા આપનાર હું પણામાં અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યું છે. चीजें कर रहे हैं, क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं ये? सिद्धांत रहस्य को याद करो तो सिद्धांत रहस्य में सबसे पहला दोष क्या मानेगा? सहज. वो सहज क्या है? सहज आए थे सहज, जो अपने जन्म के साथ अपने साथ जुड़ो है, सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से. तो वहां कह रहे हैं कि वो सहज दोष कैसे दोष? तो जो अपने अंदर एक प्राकृत, ये बात मैंने समझाई है मेरे सिद्धांत रहस्य के ग्रंथ में, ये बात मैंने यहाँ बताई थी कि जो अपने अंदर एक अहम की जो अनुभूति अपन कर पा रहे हैं और वो अहम की अनुभूति बहुत ही स्थूल स्तर पे हो रही है, और स्थूल अनुभूति के कारण अपन को जो सूक्ष्म की अनुभूति नहीं हो पा रही है, वो सूक्ष्म की अनुभूति में जो प्रतिबंध हो रहे हैं, वो प्रतिबंध काय के हैं? ये सहज दोष के कारण. श्री महाप्रभु को सर्वोत्तम में सबसे पहला नाम क्या है? सबसे पहला श्लोक सर्वोत्तम को क्या है? प्राकृत धर्म अनाश्रय और प्राकृत निखिल धर्म. ठीक है, क्या बताया वहां कि जो प्राकृत धर्म के अनाश्रय हैं और अप्राकृत सारे धर्म जिनमें विद्यमान है. तो प्राकृत धर्म यानी प्राकृत माने प्रकृति से संबंधित. प्रकृति कैसी है? त्रिगुणात्मक, सत्व रजतम. सत्व के क्या गुण है? सत्व को क्या कार्य लक्षण है? रजोगुण क्या है? रजोगुण के कार्य क्या है? तमोगुण क्या है? ये सब अपन को बता दिया. सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, रजो रागात्मकम विद्धि, भगवान गीता में आज्ञा कर रहे हैं. तमस्तु अज्ञानजम मोहनम सर्वदेहिना, ये सारे अपन को लक्षण मिल रहे हैं. तो ये एक प्रकार, ये जो कुछ भी गुण है, जो गुण अपने अंदर भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अपन को निर्माण भी प्रकृति के तत्व से है. तो वो जो सहज दोष है, वो सहज दोष क्या है? एक प्रकृति की एक जड़ता अपने अंदर कार्य कर रही है, जो जड़ता अपने को सूक्ष्म पदार्थ को अनुभव करने से रोक रही है. वो स्थूल अध्यास है, वो सहज धर्म है, वो यहाँ ये बताया जा रहा है. बाकी विषय में यहाँ ये बात कहने जा रहे हैं. सहज है तो उसका विनाश तो नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. यही बात सिद्धांत रहस्य में कही हुई. सिद्धांत रहस्य में अंततोगत्वा पूर्व पक्षी ने यही प्रश्न किया है. वो पूर्व पक्षी यही प्रश्न कर रहा है कि आप जीवात्मा को, आप चाहे त्रिलोकी में कुछ भी कैसी भी आप एक ऐसा कोई चमत्कार कर दो, तो भी आप जीव को दोष से अलग नहीं कर सकते. ये प्रश्न
पूर्व पक्षी ने हमारे सामने रखा। श्री महाप्रभु को कहा कि दुनिया में कोई ऐसी रामबाण औषधि नहीं है कि जिसके द्वारा आप जीव को निर्दोष कर सकें। क्यों? क्योंकि चलो एक घड़ी मान लिया जाए कि और कोई भी दोष नहीं लगे, पर सहज दोष यानी जो देश जैसे मनुष्य के प्रारंभ, अब वो क्या है? वो आगे की वासना है, वो आप लेकर के आए हो, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। जो आप देश, काल और कर्म, ये तीन ऐसी चीज हैं सोमवार के जो इंसान इन तीनों चीजों से चाहते हुए भी अपने आप को अलग नहीं कर सकता। वो देश में बंधा हुआ है, देश को छोड़ नहीं सकता। काल ये भगवत चेष्टा है, काल का उल्लंघन नहीं कर सकता। और कर्म वो प्रारब्ध से जो उसको मिला है देह, उसमें वो हेल्पलेस है, वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो पूर्व से चलता चला आ रहा है। तो प्रारब्ध भोग तो भोग नहीं है। तो पूर्व पक्षी ने यही कहा कि आप कोई भी ऐसी रामबाण औषधि ले आओगे, चलो सबसे असरकारक से असरकारक कोई चीज और बाकी के दोषों को तो निवारण कर लेगी, संयोगज दूर हो जाएंगे, स्पर्शज दूर हो जाएंगे, पर आप जो देश, काल और कर्म के जो प्रतिबंध हैं, उनके कारण जो दोष आ रहे हैं, उनको आप कैसे दूर करोगे? ये नीति हो गया संयोग, वो सहज दोष, बिल्कुल नीति। जीव निर्दोष नहीं होगा जो कि अंतिम, वो तो फिर बता के ना, इसीलिए तो कहा वही, जब भी तो वो कहा। आप देखो सिद्धांत रहस्य को, यही तो बात है ना, लोग सुनते हैं, सुनियो पर समझो नहीं। बार बार सुन लेते हैं पर बार बार समझना नहीं चाहते। वो जब भी तो कहा ब्रह्म संबंध करना सर्वेशान देह जीव हो, वहां बात अटकी नहीं ना। वो बाद में जो, ये तो हमने पहले ही कह दिया था, पर ये कहने के बाद उसका प्रश्न इतना प्रबल आ रहा था कि ये इनके द्वारा, ये जो है चलो ठीक है, पर हम अभी भी कहना चाहते हैं कि आपके ब्रह्म संबंध के द्वारा देश, काल और कर्मकृत जो दोष हैं वो निवृत्त नहीं होंगे, क्योंकि वो तो नित्य रूप से विद्यमान है और जीवात्मा उनसे बंधा हुआ है। इसलिए श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि भाई रुक तो जा, इतनी सब एक साथ इतनी त्वरा क्यों कर रहा है, सब बात एक साथ क्यों रख रहा है, हमारी आगे की बात तो सुन ले तू। ब्रह्म संबंध करना हमने कहा, पर वो ब्रह्म संबंध करण से सर्वदोष निवृत्त हो जाएंगे, पर वो आगे की प्रक्रिया, ब्रह्म संबंध जिस पे टिका हुआ है, वो तो आगे के फैक्टर, उसको तो सुन ले, तो तेरी ये शंका भी दूर हो जाएगी। वो ब्रह्म संबंध करना सर्वेशान देह जीवयो सर्वदोष निवृत्ति, बात पूरी हो गई। वो सर्वदोष की निवृत्ति वहां हो जा रही है, पर वो स्वरूपता सत्ता तो है वहां दोषों की। ब्रह्म संबंध केवल आपके सेवा में प्रतिबंधों को दूर कर रहा है। ये बात मैंने बार बार कही है उसको सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में, पर वही समझो पर सुनियो नहीं, सुनियो पर समझो नहीं। तो वो उसको पूर्ण करने के लिए असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनम आचरेत्, निवेद भी समर्पित सर्वम कुर्यात् स्थिति, वो सब पूरा प्रकार बताया कि नहीं बताया? वो क्या कह रहा है? वो ये बता रहा है कि भले हम श्री महाप्रभु ये कह रहे हैं कि आपकी बात सच्ची है, देश, काल और कर्मकृत दोष या कर्मकृत जो प्रतिबंध है वो तो नित्य रूप से विद्यमान होने के कारण बोध दूर होने अशक्य हैं, पर उसके रास्ते ये है, केवल आपने ब्रह्म संबंध ले लिया, पर वो अगर ब्रह्म संबंध असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनम, वो ब्रह्म संबंध को ऊर्जित करने के लिए, उसको पोषण देने के लिए असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनम, ये नेक्स्ट लाइन रखी हुई है। अगर आप असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जन नहीं कर रहे हो, तो वो बेसिकली ब्रह्म संबंध आपका कार्य नहीं करेगा। इसीलिए ये समझना था ना हमको, ये सारा प्रकार आपने बता दिया था। आज क्या हो रहा है, ब्रह्म संबंध दिया जा रहा है, पर ब्रह्म संबंध जिस पे टिकेगा
वो बाकी आगे की प्रवृत्ति, जो आगे की जो सारी प्रक्रिया है, आगे का जो प्रकार है, वो तो समझाया नहीं जा रहा है जीव को। इसलिए जीव को पहले ये समझाना था, तू ब्रह्म समझ लेना चाहता है, अच्छा वो ब्रह्म समझ टिकेगा कैसे? असमर्पित छोड़ना चाहता है, निवेद भी समर्प्य सर्वं कुर्यात् करना चाहता है, सेवकानां यथालोके व्यवहार प्रसिद्ध्यति, ये व्यवहार करना चाहता है। अगर नहीं करना चाहता तो ब्रह्म समझ टिकेगा ही नहीं, तू लेकर के भी करेगा क्या? प्रत्युत दोषावह है। इसलिए ब्रह्म संबंध देना ही नहीं चाहिए। जो जीव इन ब्रह्म संबंध को टिकाए रखने के लिए जो बाद की परिस्थिति जो बताई है, वो अगर नहीं कर सकता तो ऐसे लोगों को ब्रह्म संबंध देने की कोई अनिवार्यता नहीं है। प्रत्युत अगर जो देगा, पुरुषोत्तम जी ने, मैंने ये भी बताया था सिद्धांत रहस्य में, कि प्रत्युत जो दे रहा है वो देने वाला पाप में पड़ेगा। जो गुरु है जो गुरु ब्रह्म संबंध देते हैं बिना जीव को बताए कि ये आगे की प्रक्रिया है, वो गुरु स्वयं दोष में आ रहे हैं। ये बात पुरुषोत्तम जी ने स्पष्ट उनके सिद्धांत रहस्य की व्याख्या में बता दी। यही तो विषयांतर है। पर यहां जो है कि जे मूल वृत्ति के मौलिक अभिव्यक्ति, જેને અત્યાર સુધી કહી રહ્યા છીએ, અહમ એ મૌલિક અભિવ્યક્તિ છે। એ મૂળ અભિવ્યક્તિથી કાંઈ પણ અંશમાં જો આપણને અનુભૂતિના સ્તરે એની પૃથકતાનો જો બોધ ન થાય અને અહમની મૌલિક વૃત્તિમાં જો આપણે એવું માની લઈએ કે એકંદરે સંપૂર્ણતા માની લઈએ, એ એક જાતનો અહમનો અધ્યાસ છે, જે અહમની મૂળ અભિવ્યક્તિ છે। ये જે રીતે થઈ રહી છે ये एक अध्यास है। वो अध्यास क्या है? ये अहंता और ममतात्मक अध्यास है। और श्री महाप्रभु इन्हीं अध्यासन को सेवा में एक उनको माध्यम देने को प्रयास कर रहे हैं। अपन को जो बताया वो यही है कि जो अहंतात्मक और ममतात्मक जो अध्यास है, उन अध्यासन को आप श्री प्रभु के प्रति प्रेरित करते हैं। આવી જ રીતે આ હુંપણાથી ચિત્તની ચેષ્ટા, એના થકી બુદ્ધિની ચેષ્ટા અને એના થકી મનની વૃત્તિ, એ ત્રણેય વૃત્તિ ઓપરેટિવ થાય છે, ક્રિયાશીલ થાય છે, અથવા તે જે રીતે ઘટિત થઈ રહી છે એમનું સામાન્ય રીતે જે પ્રમાણે ઘટિત થવાનું હતું તે થવું એ પણ એક અભ્યાસ છે। જ્યારે કોઈને કમળાનો રોગ થાય એટલે કમળાના એ રોગના કારણે મનુષ્યને બધું પીળું દેખાઈ રહ્યું છે। ઓબ્જેક્ટ એને પણ એ જ દેખાઈ રહ્યા છે કે જે આપણને દેખાઈ રહ્યા છે, પણ એ રોગગ્રસ્ત વ્યક્તિ છે એને એ જ વસ્તુ પીળું દેખાઈ રહી છે। એટલે એનું જે પીળું દેખાવું છે એ પીળું દેખાવું જ રોગ છે। એને પીળું દેખાઈ રહ્યું છે એ જ રોગ છે। જ્યારે પીડાશ ઓછી થતી જાય ત્યારે આપણે એમ ચોક્કસ કહી શકીએ છીએ કે કમળો મટી રહ્યો છે। અને એનું જે જોવું અને એમાં પીડાપણું જે આવી રહ્યું છે તે પીળું જોવું એ રોગ છે। તેની આંખની સિસ્ટમ અને આપણી આંખની સિસ્ટમ સરખી જ છે। गुजराती आप सुधार लीजिए। ये तो कैंसर इटसेल्फ इज अ ग्रोथ। ये विकास तो छे, ये वृद्धि तो छे, ये जीवाड़वा वाली वृद्धि नहीं, ये मारवा वाली वृद्धि है। ये वृद्धि एक रोग है, ये वृद्धि एक नाश है। आम अहम जे अभिव्यक्त થઈ રહ્યું છે તે જ અધ્યાસ છે। જે તમારી મૌલિક અભિવ્યક્તિ જે રીતે થઈ રહી છે તેને पीड़ू दिखाई रहे उसे ते पीड़ू देखा बुझ रोग से आयो ख्याल में। ये यहाँ यही बता रहे हैं बस जो अध्यास है अहम को, जाको अपन अहंता कह रहे हैं वो ही गलत है, अहम बेसिकली गलत नहीं है। તમારું આ ફંક્શન ચાર પાસામાં વહેંચાઈને
ચેતન જે અભિવ્યક્તિ થઈ રહ્યું છે એ ફંક્શન ઇટસેલ્ફ એક અધ્યાસ છે. તમે જુઓ એ પીડાપણું દેખાવાનું કારણ એની આંખમાં રહેલું નથી. એટલે પ્રશ્ન શું થાય કે બ્રહ્મ જ્યારે આ રીતે અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યો હોય કે પોતાની જાતને આ રીતે અભિવ્યક્ત કરી રહ્યો હોય અંશમાં આ રીતે જ એની ક્રીડાનું ફંક્શન છે, તો પછી આ મોક્ષની, વિનાશની કે વિકાસની આ બધી રામાયણ શા માટે, આ બધી વાતો શા માટે કરવામાં આવી રહી છે? બ્રહ્મની રીતે અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યો છે, બીજું તો કાંઈ છે જ નહીં. ત્યાં જ આ પ્રશ્ન પર ફરી અટકી છે. કેમ કે આ જે કાંઈ જે રીતે ઘટિત થઈ રહ્યું છે તે ઘટિત થવા વાળો પદાર્થ જે છે તેમાં કાંઈ વિકાર નથી, તેમાં કાંઈ વિકાર નથી આવી રહ્યો. એ માણસને જે પીડું દેખાઈ રહ્યું છે તે દોષ ક્યાં છે? તેની આંખમાં કે તેના આંખની સિસ્ટમમાં? ના તો એ તેઓના રોગના રૂપમાં રહેલું છે, ના તો એ રોગના રૂપમાં રહેલું છે, ના એના શરીરમાં જે રોગ ફેલાય છે એ રોગના તત્વોના કારણે નહીં. ના એના શરીરમાં જે રોગ ફેલાય છે એ રોગના તત્વોના કારણે એની આંખની સિસ્ટમ બધું જ બરાબર હોવા છતાં પણ એ પીડાપણું એને દેખાઈ રહે છે. એટલે જે રીતે અહમ, ચિત્ત, બુદ્ધિ અને મન જે રીતે ફંક્શન કરી રહ્યા છે તે ફંક્શન કરવાની રીત જે છે તે રીતે જ એક અધ્યાસ છે. આપણે કમળાના રોગને ઔષધિ, પથ્ય વગેરેથી ધીમે ધીમે દૂર કરીએ છીએ અને આરામની સાથે આપણે કમળાના રોગને દૂર કરીએ છીએ. ક્રીડા એકાકી થતી નથી. ક્રીડા માટે અનંતતા જોઈએ, વિવિધતા જોઈએ. એટલે વિવિધતા ઘટિત તો થઈ અને એમાં આખું જે ઉચ્ચા વચન લાવવા માટે એના બેલેન્સને આખું ડિસ્ટર્બ કરવા માટે જે થાય છે તે અવિદ્યાનું કાર્ય. ઉડાય ઉડીએ, ઉડામાં वो गुल्ला है. वो આપણે બેસનના ગુલ્લા બનાવીએ છીએ, પાણીમાં લોટ પલાળીએ, જ્યારે ગરમ તવા પર નાખીએ તો હા ગુલ્લા હોય. એક જગ્યાએ तवे तो लगाएंगे स्पेस, એક જગ્યાએ તવે તો લગાવીને ફેરવીએ છીએ ત્યારે તેમાં કાણા કાણા થઈ જાય છે. हो जाता है. ને જગ્યાએથી ડિસ્ટર્બ કરવામાં આવ્યું તે આવી ગયું. अच्छा वो डाल के हमको दवा थोड़ा सहन करिए. मैं भी मान रहा हूँ कि ये मतलब लेख अभी बहुत जम्बल्ड है, पर एक बार अपन सब बांटने की कोशिश करें. या कोई प्रयत्न होगा तो मैं करने को या को सुधारने को करूंगा और फिर आपको फाइनल वर्जन मैं आप लोगों के सामने रखूंगा. तो थोड़ा हर एक जगह में सफर करना है, सहन करिए. कुछ तो मिलेगा. अगर 90-100 में से अगर 90% नहीं समझ में आया, 10% तो समझ में आएगा ना, वही बहुत है. वो दुर्योधन जब पांडवन की और महाभारत के समय जब पांडव और दुर्योधन की लड़ाई जब चल रही थी, वहां में जब एक के बाद इनके जो है वो रथी महारथी जब मरने लगे तो दुर्योधन जो है थोड़े व्याकुल हो गए. तो वहां उनको कह रहे हैं कि तुम व्याकुल क्यों रख रहे हो? कि आशा बलवती राजन शल्यो जेष्यति पांडवान. हे राजन, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? आशा रखो, आशा बलवान हो है. अभी शल्य राज है तो विजय करेंगे पांडवन के ऊपर, तो चिंता क्यों कर रहे हो? आशा बलवती राजन. यही मैं कह रहा हूँ, जरा साहस बनाए रखिए. मैं भी मान रहा हूँ कि ये सब चीजें बहुत ज्यादा व्याकुल कर रही हैं अपने को और ये सोच रहे हैं कि कब अपन को ग्रंथ शुरू हुआ है, ग्रंथ में सरलता हो जाएगी. पर साहस रखो, आशा बनाए रखो, थोड़ा और सहन करो.
बस एक दो चार पन्ना और है। આપણે બેસનના પૂડા બનાવીએ છીએ, પાણીમાં લોટ પડાવીએ, જેમ જ્યારે ગરમ તવા પર નાખીએ છીએ, એક જગ્યાએ તવે પર લગાવીને ફેરવીએ છીએ, તેમાં કાણા કાણા થઈ જાય છે ને જગ્યાએથી ડિસ્ટર્બ કરવામાં આવ્યું, તે અવિદ્યા છે। આ અવિદ્યાને ભગવાન એક રીતે ફેરવી દે છે અને કાણા પડી જાય છે। અવિદ્યા એ બ્રહ્મને પણ બ્રહ્મપણાનો બોધ થવા દેતી નથી। अंश अंते छे तो ब्रह्म ज ने, એટલે જીવ જે છે એ છે તો બ્રહ્મનો જ અંશ ને। આમ જોવા જઈએ તો અંશે અને અંશમાં દેખીતો ફરક તો નથી, છતાં એ અંશને પોતાનું અંશપણ અને અંશી સાથેનો સંબંધ યાદ નથી રહેવા દેતી, એટલે એનું નામ અવિદ્યા। એટલે એ જ રીતે બની રહ્યું છે એનું જ નામ અધ્યાસ। તમે કશું કરો કે ના કરો એ અધ્યાસ ઉપર કોઈનો અધિકાર નથી। એ જે કાંઈ છે બેસિકલી એનું જ નામ અધ્યાસ। બેસિકલી બે પ્રકારના રોગ હોય છે, જન્મ પછી થયેલા અને ગર્ભથી આવેલા, કન્જેનિટલ। डायबिटीज थी लईने घणा बधा रोग एवा छे जे गर्भथी ज साथे होय अने तेनी कोई रेमेडी होती नथी के तमे एने नाबूद करी शको। तमे एवुं अहींया कही शकता नथी के आवुं न कर्युं होत तो आ रोग न थात। आवुं कहेवानो अहींया कोई चांस ज नथी, केम के ए तकलीफ लईने ज बाळक जन्म्युं छे। हवे एनी रेमेडी फक्त एनी सारवार ज छे, बीजो कोई ज उपचार नथी। એટલે અભ્યાસ માટે પણ કોઈ રેમેડી નથી, તેની ટ્રીટમેન્ટ જ કરવી પડે। હવે જો એની ટ્રીટમેન્ટ શું છે, બસ અહીંયા જ આખો તફાવત રહેલો છે। શ્રી મહાપ્રભુના એંગલમાં અને તમામ દુનિયાના દાર્શનિકોના એંગલમાં અહીંયા જ આખો ભેદ છે। શરીરના ઘણા બધા મોટામાં મોટા રોગો બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટથી નાબૂદ થઈ શકે છે, જો બોન મેરો પરફેક્ટલી મેચ થતો હોય તો। तत्वथी तत्वने एनहांस करी रोगने जड़थी कापी दीधो, ए रेमेडी छे श्री महाप्रभुनी। तू जे छे ते साचा रिलेशननी फंक्शन शरू करी दे अने दरेक वस्तु कपाई जशे, दरेक वस्तु एनी मेटे सारी थई जशे। ए त्यां बोन मेरो ट्रांसप्लांट थई गयो। यथार्थ सब देखाતું નથી ને જે क्या कहे तू जे छे ते साचा रिलेशन की फंक्शन शुरू कर दे। श्री महाप्रभु वही कह रहे हैं कि तू और सब गाय में बछड़ा में पड़ रहा हो, तू कौन है और तू जीवन में क्या करना है, बस इतना तू शुरू कर दे, बाद में अपने आप सब चीज सही हो जाएंगे। तकलीफ ये है कि अपन बस उतना ही नहीं करना चाह रहे हैं, सब कुछ अपने सामने होते हुए भी न जाने क्यों अपन ये या एक भय सु अपने अंदर एक भय व्याप्त हो गया और अपने कर्तव्य सु अपन दूर रहना चाह रहे हैं। जानबूझ के अपन जान रहे हैं सब चीज अपने सामने, पर फिर भी वही पोकल जवाब दे रहे हैं। संसार से, दरबार से, पति वगैरह से, धंधों से टाइम पड़ता नहीं। अरे कौन को टाइम नहीं मिल रहा है यार, दुनिया में कोई इंसान नहीं जीने। बम्बई वाले जब बात अपन जाकर कर रहे हैं तो क्या बम्बई वाले हो, बम्बई वाले के अरे तब गुजरात वाला शू जाना, हमें लोग को कई रीते जीवीए से मेरे ये समझ में नहीं आएगा कहीं। बम्बई की इतनी क्रियाशीलता है तो क्या गुजरात में कोई इंसान खाता कमाता नहीं है? और गुजरात में रहकर के अपन ये सोच रहे हैं अपन कोई गांव वाले से जाने तो अपन कहेंगे भाई गांव वालों, अरे तू क्या समझे हमारे यहाँ की तकलीफ, हम कैसे जीने? तो क्या गांव में नहीं रहते होंगे लोग? तो ऐसा कोई थोड़ी है कि नहीं हो सकेगा। श्री महाप्रभु को उपदेश अगर हर व्यक्ति ये सोचने लग जाएगा कि ये अशक्य उपदेश है और ये सब इम्प्रैक्टिकल है तो अंत हो गया, फिर तो बात करने जैसा है नहीं।
છે તે સાચા રિલેશનની ફંક્શન શરૂ કરી દે અને દરેક વસ્તુ કપાઈ જશે. એ ત્યાં બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થઈ ગયું. તું અંશી છે, ગર્ભદાસ છે, તારું બેસિક ફંક્શન સેવા છે. કેમ કે સેવા કરી શકે. સેવકપણું તું તારા ગર્ભથી લઈને આવ્યો છે. ये बात आपको सिद्धांत मुक्तावली में श्री महाप्रभु ने बताया. श्री गोसाई जी ने आपको बहुत विशद विवेचन उनके टिप्पणी में, उनके विवृत्ति में करे हुए. सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में ये सहज रासत्व को બીજી બધી ટ્રીટમેન્ટ, દાખલા તરીકે રેડિયેશન, કીમો, આ બધા છે પણ એક આપતા બીજા 10 ઉત્પન્ન થાય છે. એક ટ્રીટમેન્ટ આપતા બીજા નવા કરવા પડે. ટ્રીટમેન્ટ એક જ છે અને સાઇડ ઇફેક્ટ ઘણી છે. એટલે 35 ઇફેક્ટ એટલે ત્યાં તત્વોથી તત્વોને એન્હાન્સ કરીને રોગ કાઢી નાખે. જીવ જે છે તે અંશીનો જ અંશ છે અને તેથી તે સ્વામીનું સેવકપણું ગર્ભમાંથી લઈને આવ્યો છે. એના બીજા જે પણ કાંઈ રિલેશન છે એ બધા આરોપિત છે. એનો સ્વાભાવિક જો સંબંધ હોય તે દાસ હોવું છે. दासत्व के सेवकत्व, या बात को वहां अच्छा कह रहे हैं कि दास होने के बाद फिर वो सेवा दास धर्म को निर्वाह क्यों नहीं कर रहे हो? तो वहां गीता को एक बहुत सुंदर श्लोक कह रहे हैं कि वो मूढ़ हैं या हमारे वो अपने दास धर्म नहीं करने के कारण मूढ़ा जन्मनी माम अप्राप्य कौनते तत्व यंत्र आत्मान ये कौनते वो मूढ़ है या हमारे अपने सेवक धर्म को नहीं जानते हुए वो सेवक धर्म सुच्युत हैं, अतः वो जन्म जन्मांतर में या अधम योनि को प्राप्त करते हैं. દાસત્વ કે સેવકત્વ એ એનું બેસિક રિલેશન છે. બાકીના બધા જ રિલેશન ઇમ્પોઝડ છે. તેથી શ્રી મહાપ્રભુ બતાવે છે શ્રી કૃષ્ણ સેવા સદા કરે, સેવાની સેવક ધર્મ તદુત્યા જીવનાનામ શેષાણામ સહજ આસક્તમ જ્ઞાતમ. તેથી જુઓ કે અસુરોમાં પણ અસુરપણું શું છે? એ પોતાનું સ્વપણું ભૂલી ગયા એટલે એમના પાસે સ્વાભિમાન ન રહ્યું, ફક્ત અભિમાન રહી ગયું. स्व वगर अभिमान रह गए, माने अपन में और असुरन में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वो भी अपने स्वपण को भूल गए, अपन भी अपने स्वपण को भूल गए. कितनी अच्छी बात कही है. સ્વ વગરનો અભિમાન રહી ગયો. જેને પોતાપણાનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોય એ સેવક દૈવી અને જેને ફક્ત અભિમાન હોય એ અસુર. આસુરી એ અસુર. આસુરી અને દૈવીમાં શું ફેર છે? એ આસુરી એટલા માટે કહેવાય છે કે પોતાના સાચા સ્વભાવને અને સાચા સંબંધને દૃષ્ટિગોચર ન કરી અને એ સેવામાં પ્રવૃત્ત થતા નથી. પરમાત્માના માર્ગ ન ચાલવું, પરમાત્માના માર્ગમાં ન ચાલવું એ જ એમાં રહેલું આસુરીપણું છે. એના કારણે તેથી જ આસુરી યોનિમાં આપણના મૂળા જન્મની. તેથી ભગવાન એમને મૂળ શબ્દથી સંબોધન કરે છે. મૂળ શબ્દ મતલબ શું થયો? જેને ભાન નથી, વિવેક નથી, જે ભૂલી ગયો છે એટલે જે પોતાનું ભાન ભૂલી ગયો છે કે તેને કયા માર્ગે જવું જોઈએ, એનું પોતાનું સાચું સ્વરૂપ શું છે અને એમનું સાચું કર્તવ્ય શું છે. એ જે આ કર્તવ્ય અકર્તવ્યનો ભાન ભૂલી ગયા છે એ મૂઢા. જન્મની મામ અપ્રાપ્તિ એવ કોંતે તત્વો યાંતે અજમાન નથી. એટલે આસુરી જીવો અથવા જીવોમાં આસુરપણું શું છે? પોતાના પણાને ન ઓળખવું, પોતાના સાચા રિલેશનને ન ઓળખવું એ જ એમનું આસુરીપણું છે. તેથી બેસિક જે ફંક્શન છે, ફંક્શનને આપણે રિહેબિલિટેટ કરવો છે. જ્યાં હતો ત્યાં એને પુનઃ સ્થાપિત કરી દેવો. આથી જે પુનર્વાસની પ્રક્રિયા છે, આખું જે રિહેબિલિટેશન છે, જ્યાંથી એ ચૂકી ગયો હતો, જ્યાં એ પોતાને ન સાંભળી શક્યો, એ ત્યાં એને લઈને ગોઠવી દેવાનું નામ રિહેબિલિટેશન. જે અવિદ્યાના કારણે તમામ કાર્યશીલતાને જે ભૂલી ગયા છે, ત્યાં તું તારી જાતને પુનઃ સ્થાપિત કરી દે.
રિહેબિલિટેટ કરી દે, તારું સાચું રિલેશન ભગવાન સંપૂર્ણ જગતમાં જે પણ જીવ આવ્યો છે, જે પણ જીવ આવે છે તે બિલકુલ સંપૂર્ણ જગતમાં જે પણ જીવ આવ્યો છે તે જીવ બીજું કાંઈ નથી પણ પોતાના અંશીનો અંશ છે અને એનો સાચો અસ્તિત્વ છે. અને એ અંશની પરિચર્યા કરવી, અંશને જ પોતે અંશપણામાં જે કાંઈ મળ્યું છે તે અંશપણામાં મળેલા તમામ મેકેનિઝમ, જે કાંઈ પણ વસ્તુઓ છે, પદાર્થ છે, જે કાંઈ પણ મળ્યું છે આપણા દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, અંતઃકરણ સાથે એનાથી પોતાના અંશીને રીઝવવું, બસ એ જ તારો સાચો સંબંધ છે. તું અંશીને રીઝવશે તો બધા જ એના સ્થાને પાછા આવી જશે, દરેક જગ્યાએ એના મૂળ રૂપમાં આવી જવાનું છે. એટલે અધ્યાસની જો યોગ્ય સારવાર હોય તો તે કૃષ્ણ સેવા અને કૃષ્ણ કથા સિવાય કાંઈ નથી. તેથી બેસિકલી જે આત્મતત્વ અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યો છે, જે વૃત્તિઓથી અહમ, ચિત્ત, બુદ્ધિ અને મન, તે વૃત્તિઓને જુઓ. શ્રુતિમાં કેવો સુંદર કહ્યું કે પરાંચી ખાની વેતરણો સ્વયંભૂ. ઇન્દ્રિયોનું મેકેનિઝમ પરમાત્માને કેવું બનાવ્યું કે જે સહજ બહિર્ગામી છે. કશ્ચિત ધીર, કોઈ ધીરજવાન એવો હોય છે કે જે આ શ્લોક પર, જે આ જ્ઞાન પર ગાડી ગબડા શ્લોક હે આપણે બહુ જરા સાઈડ જે આ શ્લોક પર ગાડી દબડવા જ લાગે એટલે એટલો એનો જ આખો બહિર્ગમન છે કે જે જ્યારે ગમે એ ઇન્દ્રિયોનું બેસિક ફંક્શન તમે એના અંશી તરફ વાળી દીધો, એ તેમનું સાચું ફંક્શન. એ કુછ એક નથી. क्या श्लोक क्या समझाना चाह रहे हैं? ये वो समझाना चाह रहे हैं कि वो इंद्रियन को स्वभाव जो है वो संसारोन्मुखी है, बहिर्गामी है. या हमारे ये प्रकार को, हाँ, ये जैसे एक श्लोक पे जैसे है कि वो तालाब, हाँ, जैसे जैसे वो जाता है ऐसा कंट्रोल नहीं हो पाएगा. જ્યારે તે તરફ તમે ન વાળી શક્યા તો તે આખો ખોટો સંબંધ છે, તે આખો ખોટો ફંક્શન થઈ જશે. એટલે એનાથી જે કાંઈ આ વૃત્તિઓ છે, જે અધ્યાસનું ઓલરેડી ઘટિત બની છે, એનો પ્રોપર વિકાસ નથી. અને તેથી બીજી એક વાત સમજો કે અહમ અને મમ એ ક્યારેય ખોટા નથી. એની જે એપ્લિકેબિલિટી છે તે ખોટી છે. કેમ કે બેસિક વૃત્તિમાં અહમ જે અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યું છે એ કોણ છે? એનો અંશ જ છે. તે પરમાત્મા સિવાય કાંઈ છે જ નહીં. પણ એને તમે જે રીતે અભિવ્યક્ત થવા દો છો એ આખી એપ્લિકેબિલિટી તમારી ખોટી છે. એનું જે અભિવ્યક્ત થવાનું ઇટસેલ્ફ એ ખોટું નથી. અભિવ્યક્ત થવું અને કેવી રીતે અભિવ્યક્ત થવું આ બંનેમાં તફાવત છે. એ અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યો છે એ ખોટું નથી, પણ જે રીતે એ અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યો છે એ રીત ખોટી છે. જે વસ્તુ બની રહી છે એ ખોટી નથી, જે રીતે બની રહી છે એ ખોટી છે. એપ્લિકેબિલિટી આખી ખોટી છે. એ એપ્લિકેબિલિટીને કરેક્ટ કરવાની છે અને એ કરેક્શન છે તે તેના મૂળ તરફ વાળી દેવી એ એની ટોટલ રેમેડી છે. અધ્યાસની વૃત્તિને કરેક્ટ કરવું એટલે એને તેના મૂળ તરફ વાળી દેવું, એટલે પોતાનું સેવકપણું, પોતાના દાસપણા તરફ આવી જવું અને કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્યના કર્તવ્ય તરફ ક્રિયાશીલ થઈ જવું. બધી વૃત્તિઓને એ તરફ વાળી દેવી આપણા બધા જ અધ્યાસની આ જ એક સાચી અને સારી સારવાર છે. और वो सारवार होगी अपने अहम मन, अपने अहम मन बुद्ध और बुद्धि और चित्त इनके सही एप्लीकेशन.
जैसे यहाँ कोई अपन ने बात करी है, नहीं चालू है तो लाइट चल रही है। जैसे अभी अपन ने षोडश ग्रंथों का वर्गीकरण प्रमाण प्रमेय साधन फल की दृष्टि से की हो, ऐसे ही वस्तु विषय की दृष्टि से अगर अपन जब थोड़ा विचार करें तो कुछ ग्रंथ ऐसे हैं कि जो स्वरूप गुण लीला से संबंधित हैं, जैसे यमुनाष्टक है। कुछ ऐसे ग्रंथ हैं कि जिनमें केवल कोई विषय, एक विषय को निरूपण की हो, जैसे अपन ने भक्तिवर्धनी देखे और भक्ति को निरूपण है, विवेक धैर्याश्रय है और विवेक धैर्य और आश्रय को निरूपण है, सिद्धांत मुक्तावली एवं सेवा को निरूपण है, बाल बोध एवं सर्वशास्त्र को संग्रह है, निरोध लक्षण है और निरोध के स्वरूप को वर्णन किए हुए है, सेवा फल है और सेवा के फल के विषय में बात करी गई है, जल भेद और पंचपद्यानी है उनमें श्रोता और वक्ता के लक्षण के विषय में स्वरूप बताया हुआ है। तो यह प्रकार से ये सब इनको विवेचन है, इनके विषय को वर्गीकरण है। इनमें अपन केवल दो ग्रंथ की अपन बात करें, जैसे नवरत्न और विवेक धैर्याश्रय। नवरत्न में क्या है? जीव को चिंता नहीं करनी है, क्या प्रकार का सारों में विवेचन। नवरत्न को प्रायः वैष्णव जन समुदाय एक भिन्न अर्थ में समझने लगे और वहां को यत्र तत्र सर्वत्र बहुत चीला चालू रूप में वहां को प्रयोग करने के लगे कि चिंता काफी न कार्य, चिंता काफी न कार्य। कोई भी बात भी में उतना ये एक लोक जैसे लोगों की हो कि नहीं, या प्रकार से अपन ने बातचीत को प्रयोग करने लगे। कहीं भी कोई बात आई और अपन को तात्पर्य नहीं होने के बावजूद भी अपन वहां में घुसेड़ दें, अरे महाप्रभु ने आज्ञा करी चिंता काफी न कार्य। अरे पर वहां को जो चिंता काफी न कार्य कहने की पृष्ठभूमि क्या आती, वहां को विचार किया अपन ने, वो अपन बोल रहे हैं चिंता काफी न कार्य, पर वो बोलने के पीछे श्री महाप्रभु को मूल तात्पर्य क्या है ये तो समझो। वाकई बात क्या कही रही है? चिंता काफी न कार्य निवेदित आत्मविधि, जिनने आत्मनिवेदन कर लियो है, जिनने सर्व समर्पण कर लियो है, ऐसे जीव के लिए कही गई है। ये कोई नवरत्न हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अपन क्यों आपको हर चीज अपने वक्त बहुत ही सर्वसाधारण प्रकार से आपको क्यों अप्लाई करते हैं? ये ग्रंथ कौन के लिए है? जिनने आत्मनिवेदन कर लियो है, ऐसे आत्मनिवेदन व्यक्ति जो है उनके सामने एक जीवन में एक यथार्थ एक संभावना उत्पन्न हो रही है कि उनको जब उनने सब कुछ सर्वसमर्पण कर लियो है, सर्वसमर्पण करने में उनको कुछ तो खुद को तो कुछ रहे हो नहीं, सब कुछ भगवान को हो गया। अब प्रश्न ये है कि उनको अपने जीवन को, अपने देह को निर्वाह करने का, जब सब कुछ मैंने भगवान को सौंप दिया तो अब मेरे जीवन को निर्वाह को कैसे करना है? मेरा तो कुछ रहे लेकिन सब कुछ भगवान को हो गया, अब मैं अपने जीवन को निर्वाह क्या भगवान की वस्तु से मैं करूंगा? अगर भगवान की वस्तु से कर रहे हूं तो एक जगह कुआ है और भगवान, और अगर असमर्पित वस्तु से मेरे जीवन को निर्वाह कर रहा हूं तो वहां दोष लग रहा है। अब परिस्थिति मेरी कैसी हो गई? एक तरफ कुआ, एक तरफ खाई। ये एक व्याकुलता भक्त को सता रही है कि मैंने मेरो सब कुछ भगवान को, ईश्वर को सौंप दियो, मेरो जब कुछ भी मेरो नहीं रहे, सब कुछ भगवान को हो गया, तो मैं अपने जीवन को निर्वाह, अपने देह को निर्वाह, जो अपेक्षित मेरे जीवन में जो कुछ भी मुझको करना है वो क्या भगवान की वस्तु से करूंगा? अगर भगवान की वस्तु से करूंगा तो वो भगवत वस्तु को भोग करने को मुझको दोष है।
अपराध लग रहे हो। और दूसरी जगह अगर मैंने असमर्पित जो भगवान को नहीं दियो, नहीं अर्पित कियो, ऐसे वस्तु से अगर मैं अपने देह को निर्वाह कर रहे हूं तो वो दास धर्म सूचित तो हो जा रहे हूं, ऐसे में भी मुझको दोष कर रहे हो। अब ऐसी परिस्थिति में एक जगह जहां हुआ है, एक जगह खाइए, वो करनो क्या? ये परिस्थिति को, ये व्याकुलता को श्री महाप्रभु जान रहे हैं और वाकई उपाय के लिए कह रहे हैं। तो चिंता क्या कर रहे हो? चिंता मत कर। तू या प्रकार से जब आचरण करेगो, मैं जो तुमको या ग्रंथ में समझा रहा हूं, या ग्रंथ को तू सम्यक प्रकार से अध्ययन करेगो, तो तेरी ये व्याकुलता जो है दूर हो जाएगी। तो कोई विवेक जागृत हो जाएगा कि तू ये व्यवहार जीवन को कैसे विषय को, जैसे नवरत्न को जो ये विषय होनी, या जैसे एक भिन्न दृष्टि से अपन विवेक धैर्य आश्रय की बात कर रहे हैं कि जहां विवेक को स्वरूप बताया जा रहा है, जहां धैर्य को स्वरूप बताया जा रहा है, जहां आश्रय को स्वरूप बताया जा रहा है। विवेकस्तु हरिः ये छाता आमृते सर्वदा सदा दुख सहिनम धैर्यम। जो ये सारी चीजें अपन को श्री महाप्रभु क्या कर रहे हैं, जीव को उठा रहे हैं, वो मूड एलिवेट कर रहे हैं। जैसे अपन आधुनिक दृष्टि से अपन देखें तो ये मूड एलिवेटर्स हैं। कहीं जीव अपने हीन भावना से ग्रस्त नहीं हो जाए, वाक्य उठाने के लिए, वाक्य मन को स्वस्थ करने के लिए, वाक्य अंतःकरण को एक स्वस्थ दिशा दिखाने के लिए ये सारे अपने ग्रंथ हैं। इन्हीं श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ रही है, अंतःकरण। ये जो ग्रंथ हैं इनकी एक अलग श्रृंखला है। और षोडश ग्रंथन के अंतर्गत जितने और जो ग्रंथ हैं, जैसे यमुनाष्टक है, सिद्धांत मुक्तावली है, बाल बोध है, भक्तिवर्धनी है, इन सब की एक अलग श्रृंखला है। और नवरत्न है, विवेक धैर्य आश्रय है, अंतःकरण प्रबोध है, इनके या और आगे हाइट में जाएंगे तो निरोध लक्षण है। ये नहीं, संन्यास नहीं, निरोध लक्षण, वहां भावन की प्रक्रिया बताई गई है। सब चित्त को कैसे डाइवर्ट करना है, कैसे स्वस्थ रहना है, एक जीव को, एक भक्त की क्या मनोदशा होनी चाहिए, ये सब चीजों को एक गंभीर स्वरूप इन ग्रंथन में बताया। वही ग्रंथन में एक ग्रंथ है अपनो जो अपन कर रहे हैं, अंतःकरण प्रभु। या तो ये ग्रंथ को शुरू करने के पहले एक प्राचीन लेख है या के विषय में, वो वाचूंगा, वाके बाद वाको ग्रंथ को परिचय है वो वाचूंगा, और फिर ग्रंथ को मैं शुरू करेंगे। अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ प्रकट करता अमुने सहज आनंद से आ ग्रंथ सुबोधनी आदि आलेखाया પછી પરિણિત અવસ્થામાં લખાયા હોવાથી માર્ગીય મૂર્ધન્ય સિદ્ધાંતનું સિદ્ધાવલોકન કર્યું છે। તેથી શ્રી મહાપ્રભુજીનું પ્રભુ સહ સાનુભાવતાનું પ્રદર્શન અને ઐતિહાસિક પ્રકાશનનો લાભ આ ગ્રંથ દ્વારા ઉપલબ્ધ થાય છે। अंतःकरणना मन चित्त एम सामान्य पर्यायों टीकाकारों स्वीकार्या है। मन विज्ञानનું સ્થાન હૃદય મૂલક હોવાથી હૃદયવાચક અંતઃકરણ શબ્દનો અત્ર પ્રયોગ છે। શ્રી પુરુષોત્તમજી કહે છે કે મનને વશ કરે તે દેવનો દેવ જાણવું। આ પ્રમાણાનુસાર મનને જ સાધવા માટે અંતઃકરણ પ્રબોધ છે। हेतु समझ लो, हेतु क्या है ग्रंथ को, प्रयोजन क्या है। कोई भी कार्य शुरुआत करें, मैंने पिछली बार भी बताया था सत्र में, 4 चीजों को अपन कोई भी कार्य प्रवृत्त करने के पहले 4 चीजों को अपन ख्याल रखें, संबंध, प्रयोजन, विषय और अधिकारी। 4 चीजों को अपन ख्याल रखें, इनको अनुबंध चतुष्टय कहें। अनुबंध चतुष्टय, अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। आ प्रमाणानुसार मनने જ સાધવા માટે અંતઃકરણ પ્રબોધ છે। प्रयोजन स्पष्ट हो गया ग्रंथ को। संबंध क्या है,
प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध, अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ प्रतिपादक, और अंतःकरण को प्रबोधन दोनों अधिकारी कौन है? जीव को अंतःकरण। अब क्या शेष रहेगा? अंतःकरण को प्रबोधन। આ પ્રમાણાનુસાર મનને જ સાધવા માટે અંતઃકરણ પ્રબોધ છે। મનનું સ્વરૂપ લક્ષણ સંકલ્પ વિકલ્પાત્મકમ મન। मन कैसो है? संकल्प विकल्पात्मक। क्षण में संकल्प करे, क्षण में विकल्प करे, या प्रकार का मन है। कार्य लक्षण कामजनकत्व मन। आ बंने लक्षण आध्यात्मिक थया। आदिदेविक लक्षण तो अनिरुद्ध आविर्भाव स्थानत्वम। आदिभौतिक लक्षण योगी विधि शनैः संग्राह्यत्वम। मन नु लिख लो फिर दोबारा। स्वरूप लक्षण संकल्प विकल्पात्मकम मनः, ये स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण डैश संकल्प विकल्पात्मकम मनः। कार्य लक्षण डैश कामजनकत्वम मनः, माने कामना को उत्पन्न करना। कामजनकत्वम, कामजनकत्वम मनः, कामना को उत्पन्न करना, ये वाको कार्य है, कार्य लक्षण। ये आध्यात्मिक लक्षण है दोनों। अब आगे भौतिक लक्षण लिख लो। योगी भी शनैः संग्राह्यत्वम। योगी भी शनैः संग्राह्यत्वम। सम स और ऊपर बिंदी सम राध्यत्वम, राध्यत्वम। योगी भी शनैः संग्राह्यत्वम। और आगे लिखे अनिरुद्ध आविर्भाव स्थानत्वम। अनिरुद्ध आविर्भाव स्थानत्वम। मन अनुपरिमाण है और चंद्रमा के देव है। मन नु अनुपरिमाण छे, चंद्र देवता छे। काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा वगैरह मनना गुण छे। તેથી તે ચિંતા કરે તે સ્વાભાવિક છે। વસ્તુતસ્તુ સેવકને ચિંતા રહિત કરી સેવકની સેવા આદિદેવીની બને એ જ મુખ્ય આશય આ ગ્રંથનો છે। આ આશયને સ્વ અંતઃકરણના વ્યપદેશથી ભક્ત અંતઃકરણને શ્રી મહાપ્રભુજી ઉપદેશે છે। અંતઃકરણે ભગવાનની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કર્યું, देह અને દેશ ત્યાગની આજ્ઞા ન પાળી, તેથી અપરાધી થયું। તેને ઉપદેશ આપવો જોઈએ।
શ્રી વ્રજસ્વામીજીઓએ ભગવદ આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું. શ્રી મહાપ્રભુએ દેશ ત્યાગ કરવાની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કર્યું તો સેવક પણ કરશે. આવી રીતે ભગવદ આજ્ઞાને ઉલ્લંઘન કરવાની પ્રથા માર્ગમાં ચાલુ થવાના ભયથી અંતઃકરણ પ્રબોધ ગ્રંથનો પ્રાદુર્ભાવ થયો એમ કહેવું જરાય અતિશયોક્તિ ભરેલું નથી. पर आज वो सब बात अब गई, क्योंकि अब तो सब अपने आधार पे सब अपना मार्ग हो गया. अब न कोई की मर्यादा रही, न कोई के सिद्धांत रहे. मर्यादा भी अपनी बनाई गई और सिद्धांत भी अपने. तो अभी हमें विचारो अंतःकरण प्रबोध करें क्या? क्योंकि अब तो डगले पगले महाप्रभु की मार्ग की मर्यादा को उल्लंघन हो गया. નવરત્નમાં જે કહ્યું ચિંતા ના કરવી અંતઃકરણ પ્રબોધને જ કહેવાય. नहीं, मैंने वो ये बात कही है. मैंने इन तीनों ग्रंथन की आपको उनको एक मैंने नफ्स टटोल के बात मैंने कही है कि ये एक प्रकार की श्रृंखला आपको बता रहे हैं. वो जैसे मेडिकल साइंस में मूड एलिवेटर होंगे क्या नहीं, जब वो अपने मनोचिकित्सक में अपने जैसे ट्रैंक्विलाइजर कह रहे हैं, तो जब आदमी जब एकदम उग्र हो जाए तो कुछ दवाई ऐसी दी जाए तो मूड को एलिवेट करें, यानी क्या ट्रैंक्विलाइजर दिए जाए. अगर बहुत ज्यादा उग्र हो कोई व्यक्ति तो आपको ट्रैंक्विलाइजर दिए जाए तो आपको दिमाग जो है थोड़ा कम चलने लगता है. या अगर कोई डिप्रेशन में या तनाव में अगर हो कोई व्यक्ति तो उनको मूड एलिवेटर दिए जाए, जैसे वो स्वस्थ कुछ सोचने लगता है. तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनकी जैसे विवेक धैर्याश्रय या नवरत्न है या अंतःकरण प्रबोध जो है वो ये एक प्रकार को कार्य कर रहे हैं. ये ग्रंथ यानी जीवात्मा को वाकई स्वरूप को एहसास दिला रहे हैं कि तू कौन है और तू क्यों यह प्रकार के हीन भाव से ग्रस्त हो गया है. तू स्वस्थ विचार कर. क्यों? जैसे विवेक की बात आई, जैसे वहां विवेक धैर्य आश्रय और रक्षण के वो काय के लिए समझा रहे हैं कि तू कोई भी परिस्थिति में क्यों इतना व्याकुल हो जा रहा है. तू अपने आप को पहचान के तू कौन है. तू विवेक, तेरे अंदर विवेक होना चाहिए. तू विवेक को रक्षण कर, आश्रय को रक्षण कर, आश्रय अपने आप मिल जाएगा तू. तो ये सब चीजें क्या बता रही है यहाँ पे? एक अपने को दिशा सूचन की हो जा रही है. दुर्भाग्य ये है अपनों के अपने मार्ग में ये अंतःकरण प्रबोध विवेक धैर्याश्रय जैसी जो कृति है ये एक आधुनिक दिशा सुई है, आधुनिक भाषा के रूप में ये आधुनिक समाज तक पहुंच नहीं है. आज ये मनोचिकित्सक जितने भी हैं वो आज अपना उपाय बता रहे हैं. मेरे ख्याल से ये अगर यही उपयोग को, अगर इन्हीं ग्रंथन को अपन एक आधुनिक ढंग से रखने को प्रयत्न करें तो ये यही मनोचिकित्सा है और क्या हो सके. श्री महाप्रभु चार रूप में आज जीव को आके स्वरूप को एहसास करा रहे हैं. केवल एक आधुनिक भाषा की अपन को जरूरत है. बाकी अगर अपन यही दें तो लोगों को ख्याल में आएगा कि क्या है ये. दुर्भाग्य तो ये है कि अपन या को सही माध्यम में रख नहीं पा रहे. श्री વ્રજસ્વામીજીએ ભગવદ આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કર્યું. શ્રી મહાપ્રભુએ દેશ ત્યાગ કરવાની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કર્યું તો સેવક પણ કરશે. આવી રીતે ભગવદ આજ્ઞાના ઉલ્લંઘન કરવાની પ્રથા માર્ગમાં ચાલુ થવાના ભયથી અંતઃકરણ પ્રબોધ ગ્રંથનો પ્રાદુર્ભાવ થયો. એમ કેવું જરાય અતિશયોક્તિ ભરેલું નથી. આ વાત સેવકને સમજાવવા શ્રી કૃષ્ણની ઉત્કૃષ્ટતા સાધવા श्री कृष्ण थी और कोई उत्तम देव नहीं एम साबित करी छे. श्री पुरुषोत्तम जी कहे छे श्री कृष्ण थी दैव एटले देवी समूह श्री व्रजस्वामीनीओ पर एटले उत्कृष्ट नहीं, भिन्न नहीं, माटे तेमनो दाखलो लई आज्ञा भंग न करो. सामान्य रीते टीकाकारो આજ્ઞાના વિષયમાં આ પ્રમાણે આલેખે છે. मूल रूप से श्री महाप्रभु के जीवन में 5 आज्ञाएं रही हैं.